Good morning, students. Have a nice day. Students, we are going to discuss our new point, okay, of chapter number 18. An ambitious plan to save the river called Ganga Action Plan was launched in 1985. Ganga Action Plan was launched in 1985. The main motto of the launching of this Ganga Action Plan was to make the water pure, which is present in the Ganga river. It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. Okay, but due to industrialization and due to so many reasons, due to increasing populations, due to people's behavior, what happens, students? This river is damaged beyond the repair. मीन्स वो आई थिंक यहाँ पे ये कहा गया है कि वो रिवर कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मिशन लॉन्च किया गया. दैट नेम ऑफ दैट मिशन इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा in 2016. Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most populated stretches of the river. Kanpur is one of the most populated towns in UP. Okay, students, what is here? Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretches of the river. Okay, यानी ये जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का कानपुर, यहाँ पे गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है. कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी. यूपी का एक टाउन है ये कानपुर, और वो बहुत ही पॉपुलेटेड है. वहाँ पे गंगा जो रिवर है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो गंगा रिवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है. वहाँ पे वो पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड defecting in the river. They also throw garbage, flowers, idols of gods and goddess and non-biodegradable polythene bags into the river. Okay, people throw garbage and so many things in the river, and due to what happens, students, at Kanpur the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow. Okay, what happened here? The amount of water is comparatively small. Here is the presence of water in that area is very small in the Ganga river, and so the river flow in slow motion. Okay, you students, you already know that when at the slopes, when water is flowing from the slopes, then the speed of water is high, and when water is flow on the plain, अगर वाटर प्लेन जगह का कोई प्लेन है, वहाँ से अगर वो वाटर अगर समझो फ्लो हो रहा है तो उसका स्पीड कैसे होगा? बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा. कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज. कानपुर में 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है. दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज. ये और इंडस्ट्रीज वहाँ पे है. दिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट इनटू द रिवर. What is the working of these industries? They discharge chemical waste into the river. Based on the above information, think of the answer to the following question. According to this information, tell the answer of this question. Many industries discharge harmful chemicals into the river and stream, causing the pollutions of water. Okay. What is here, students? Many industries discharge harmful chemicals into the river. Many industries drop chemicals into the river and stream, causing the pollution of water. इसके वजह जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वो क्या करते हैं, केमिकल्स क्या करते हैं, वो पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है वाटर का. एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? ऑयल रिफाइनरीज है, पेपर फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल है, शुगर मिल्स है. टेक्सटाइल मीन्स व्हाट? कापड़ की इंडस्ट्री. और शुगर मिल्स, ठीक है. तो शुगर मिल्स से क्या निकलता है? एक ऐसा जिसको हम कह सकते हैं जो अनवांटेड वेस्ट होता है शुगर या उस गन्ने के अंदर से जो उसका जो रस निकालने के बाद, जो जूस निकालने के बाद जो रहता है ना, वो वेस्ट बहुत ही एक उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है. हो सकता है ये जो वेस्ट है वो डायरेक्टली पानी में डालते होंगे, इसकी वजह से यहाँ का जो रीजन है ना बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है वो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, and chemical factor. These industries causes chemical contamination of water.
Okay, this industries, what is the working of these industries? This industry causes chemical contamination of water, means to make that water chemically impure, sorry, to make or to add chemicals into the Ganga rivers. The chemicals released including arsenic, lead, these are chemical which are drop into the Ganga river. The chemicals are arsenic, lead and fluorides. Okay, these are very poisonous chemicals students, which lead to toxicity in plants and animals. ये क्या करते हैं, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स को. ओके, उसके अंदर के फिश को, उसके अंदर के जो पौधे होते हैं उस रिवर के अंदर के, उनको टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको फेस करना पड़ता है. देयर आर regulations to prevent this. Industries are supposed to treat at the waste produce before discharging it into the waters, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by impure water, causing changes in acidity, growth of worms. What happens students? The river, the water which is flown in this Ganga river is absorbed by the soil which is present around the Ganga river. And what happens student, due to this all chemicals just like arsenic, okay, fluorides, these chemicals are also absorbed by the soil which is present at the river bed. Due to what happens student, due to what happens student, the soil is become acidic now. Growth and then what happens student, acidic, in the acidic soil crops are not grow properly. The soil is also affected by impure water, causing changes in acidity, growth of worms. We have learned in chapter first that the importance of pesticides and weedicides for the protection of crops. However, all these chemicals dissolve in water and are washed into the water bodies. Okay students, these are all chemicals dissolved in the water, and these all chemicals are washed into the water bodies from the fields. They also seep into the ground to pollute the ground water. इसके अलावा क्या होता है, जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं खेत में. तो जब वाटर, जब रेन ड्रॉप्स वहाँ पे गिरते हैं तब क्या होता है, तो पानी के साथ जब बारिश होती है, बारिश के साथ क्या होता है, वो जो केमिकल्स हैं जो सॉइल में डाले गए हैं, वो केमिकल्स भी पानी के साथ उस रिवर में एंटर हो जाते हैं, गंगा रिवर में. हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक green from a distance because they have a lot of algae growing in them? This is caused by excessive quantities of chemical which get washed into the fields. ओके स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ कुछ रिवर में या कुछ कुछ पॉन्ड में क्या होता है, जो अलगी है, जो ग्रीन कलर के पैचेस है, ओके, वो वहाँ पे ग्रो होते हैं. ठीक है, इससे पहले वाला जो अपने फर्टिलाइज जो चैप्टर है प्रीप्रोडक्शन, उसमें अलगी की ग्रोथ किस तरह से होती है, ये पूरा आपने वर्किंग उसका देखा है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो जो पॉन्ड है उसके ऊपरी साइड में क्या हो रहा है, इन केमिकल्स की वजह से ग्रीन अलगी के पैचेस तैयार हो रहे हैं. These act as a nutrients for algae to flourish. ओके, तो ये जो केमिकल्स है वो एक तरह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं अलगी को. वंस दिस अलगी डाई, they serve as a food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. Okay, what happen then students, when these algae die after some time, then some bacteria which is present in that water decompose that algae, and in this all process a lot of oxygen is used. This result in a decrease in the oxygen level which may kill aquatic organisms. What happens student, due to this, due to so many in a large quantity of algae and due to all other bacteria, the level of oxygen in that water is decreasing day by day. You had investigated the sewage disposal system of your locality in the class 7. Do you remember how the sewage was collected from your home and where it went thereafter? Okay, you have investigated the sewage disposal system in your locality. Okay students, तो ये 7th स्टैंडर्ड का पार्ट है. यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने जो सीवेज होता है, ठीक है, जो आपके घर का जो सीवेज होता है उसको कहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उसको कहाँ पे डाला जाता है, ऐसा वो क्वेश्चन है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे इस तरह से सीवेज सिस्टम जितनी डेवलप होनी चाहिए उतनी है नहीं, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बड़े बड़े सीवेज पाइप्स होते हैं. ठीक है,
उन जो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो कॉलोनीज होती हैं उनका जो सीवेज होता है वो एक बड़े पाइप के ज़रिए एक एक प्रॉपर ऐसे लोकेशन पे भेजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके ऊपर बाद में क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके उससे फिर फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। समटाइम्स untreated sewage is thrown directly into the river. It contains food waste, detergent, microorganisms, etc. Okay, what happens students? ये जो अनट्रीटेड सीवेज होता है वो डायरेक्टली रिवर में भेजा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस सीवेज में क्या होता है, फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज? जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूटेड होता है क्या सीवेज से? हाउ वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ सीवेज मे कंटेन बैक्टीरिया? ओके स्टूडेंट्स, what is present in the sewage? Sewage contains some bacteria, viruses, fungi and parasites which causes diseases like cholera, typhoid and jaundice. तो इसकी वजह जो सीवेज वाटर होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाय चांस अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो उससे हमको तरह तरह के डिसीजेस हो सकते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। ओके, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स के फेसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है वो इंडिकेट करते हो। इफ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कॉन्टेमिनेटेड बाय फेशियल मैटर। अगर वाटर में मैमल्स के बॉडी के अंदर के वजह से मैमल्स के जो वेस्ट है उसके अंदर की जो अगर बैक्टीरिया हो समझो वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वाटर है वो कॉन्टेमिनेटेड है। इफ सच वाटर इज यूज बाय अस इट कैन कॉजेस वेरियस इन्फेक्शंस। अगर इस तरह का जो वाटर हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उससे हमको तरह तरह के इन्फेक्शियस डिसीजेस को फेस करना पड़ सकता है। डू यू नो हॉट वाटर कैन आल्सो बी अ पोल्यूटेंट? दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज. It is released into the river. It raises the temperature of the water body, adversely affecting the animals and plant living in it. Okay students, जो हॉट वाटर होता है, जो तरह तरह के जो पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट मीन्स व्हाट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट में क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ के जो जिसको कुछ तो भी कहा जाता है, वहाँ का एक जो मशीन्स होते हैं एटॉमिक पावर प्लांट में, उन्हें धोने के लिए क्या किया जाता है, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो वाटर होता है उस वाटर को, उसमें रेडियो एक्टिव केमिकल्स हो सकते हैं उस वाटर में, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, केमिकल्स है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल्स है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ऐसा जो वाटर है उसको उसके लिए एक वर्ड है, यस कोई तो भी इसको वाटर कहा जाता है, अब में हेवी वाटर कहा जाता है उसको। ठीक है, ये जो हेवी वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उनको फैला सकता है, तो इस वाटर का प्रॉपर डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और भी जो पावर प्लांट है उनको भी धोने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो वाटर होता है ये पोल्यूटेड वाटर बन जाता है ऐसे, और ये हॉट होता है वाटर। तो ऐसे वाटर को अगर आप डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में एंटर करोगे, रिवर में या पॉन्ड में एंटर करोगे, तो वहाँ के वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और जिसके वजह से उस वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर फिर बाद में वो मर भी सकते हैं उस हॉट वाटर से। ठीक है, या तो फिर वो मर जाएंगे या तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। सो इस तरह के हॉट वाटर को कभी भी डायरेक्टली वाटर सोर्सेज के अंदर आपको नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड? तो पोर्टेबल वाटर मीन्स व्हाट, और पोर्टेबल वाटर को किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विथ सिंपल एवरीडे मटेरियल। Take a plastic bottle and cut into 2 halves at the center. Use the upper half as a funnel by putting it upside down in the lower half. Make layers in it with paper napkin or a fine cloth, followed by cotton, sand, and then gravel. Now pour directly water to the filter and observe the filter water. Okay students, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेने की उसको बीच में से कट करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो प्लास्टिक बॉटल का जो ऊपरी पार्ट होता है,
ठीक है, जिसके ज़रिए हम वाटर को ड्रिंक करते थे। तो उस ऊपरी पार्ट पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कोई क्लॉथ या यस आप वहाँ पे क्लॉथ का इस्तेमाल करके वहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है। उसको पैक करना है आपको क्लॉथ का यूज़ करके, और उसके बाद उस ऊपरी जो पार्ट है वो आपको फनेल जैसा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ मेक लेयर इन इट विथ पेपर नैपकिन, उसके अपर पार्ट पे आपको पेपर नैपकिन के एक लेयर बनाने के है, ठीक है। और फॉलोड बाय उसके ऊपर फिर कॉटन, सैंड एंड ग्रेवल, ये सभी चीज़ उसके अंदर आपको डालने की। और उसके बाद उस जो फनेल है उस फनेल के अंदर से आपको, अभी वो फनेल बन गया, ठीक है, जो ऊपरी पार्ट है उस फनेल के अंदर से आपको जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है या जो फिर जो गंदा पानी है उसको आपको पास करना है, ठीक है। देन व्हाट हैपन स्टूडेंट, दैट वाटर इज फिल्टर्ड, ओके। वो जो वाटर है, ठीक है, जो फनेल के अंदर से आपने पास किया, उस फनेल के अंदर आपने क्या बहुत सारे ऐसे चीज़ें डाली, कॉटन है, ठीक है, सैंड है, ग्रेवल है, ग्रेवल मीन्स रेती रहती है वो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के अंदर से जब आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर को, या जिसको हम कह सकते हैं जो गंदा पानी, उसको अगर आप पास करेंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है वो फिल्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन वो जो वाटर है वो ये नहीं रहेगा, मीन्स वो पूरी तरह से बैक्टीरिया वायरसेस से फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। वो खाली दिखने में आपको प्योर लगेगा लेकिन वो प्योर होगा नहीं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, वाटर को फिल्टर क्यों करना पड़ता है ड्रिंकिंग से पहले, ओके। इट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट्स। इन वाटर contain many types of bacteria and viruses. When you does not filter that water, many particles of the soil or another microorganisms also present in that water, and we may causes this diseases. Where do you get your drinking water from? Okay, we get our drinking water from tap. What will happen if we drink polluted water? If we drink polluted water, then we may face many types of diseases, okay students. Now I will take this part in the next video or in the Zoom meeting, okay. Now bye students.